that is gift. Now the question is, what do you understand by gift? How gift can be affected? Whether gift can be suspended or revoked at the mere will of the of the donor. क्या डोनर की मेयर विल पर गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है या नहीं? सो these are some questions which we needs to be discussed. कुछ चीजें हैं डिस्कस करेंगे. What kind of gift are given under section 122 of the Transfer of Property Act? What kind of gift? Whether it is a gift which is take into effect after the death of the donor, or it is an inter-virus gift. Because gift can be of two kind: inter-virus gift and gift after the death of the donor. After the death of the donor, it may be called as a will, succession. And inter-virus gift is a gift between two living person. गिफ्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन. किस चीज का गिफ्ट? वेदर द प्रॉपर्टी शुड बी इन द एग्जिस्टेंस और नॉट. वेदर गिफ्ट बी मेड ऑफ द इन द फ्यूचर. ये चीजें हमने सेक्शन 5 में डिस्कस की थी. एंड यू नीड्स टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस विच हैव बीन डिस्कस्ड. आपको पता होने चाहिए और हमने जो चीजें बताई हैं. तो जरा सेक्शन 122 पढ़िए और बताइए जरा किस तरीके का गिफ्ट है यहाँ. पढ़िए उर्वशी. 122. Section 122. Gift. Defined. Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee. देखिए क्या कह रहा है कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग movable or immovable property. It means at the time of making a gift, the donor must have certain existing property. Either it may be made in present or in future. For example, if father says to his son, if you will be topper in the examination, I will gift you the Swift Desire, any of the car which he promises to gift. At the time of the making of the promise to gift a car, the car must be in the existence. It must be in the existence. Only a future promise can be made, which will take effect into the future. But the property must be into the existence at the time of making the gift. ठीक है? It must be made voluntarily, without consideration. If any gift has been made without the consent of the donor, where a consent of the donor has been obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, etc., whether such consent is a valid consent? No, not at all. And such gift shall be voidable at the option of the donor. फिर क्या कह रहा है? It must be without consideration. Gratuitously. There must not be anything from the
donee. There must not be anything from the donee. It must be without consideration, without any value, without any money, without any service. It must be made bona fidely. Whether giving of some spirituality in the consideration of the gift, whether it is gift with consideration or gift without consideration. दुआएं दे रहे हैं गिफ्ट के बदले, whether such gift is valid or not. No, sir. अरे स्पिरिचुअल इंसाइटमेंट्स दे रहे हैं आपको, आपको कह रहे हैं कहने लगे भगवान आपको लंबी उम्र दे. But sir, there should be existing movable or immovable property. Essentially. नहीं 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 नहीं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिडरेशन. Yes. सर कंसिडरेशन के साथ गिफ्ट कैसे हो सकते हैं? गिफ्ट इज ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन. What I am talking about? What I am talking about? Whether An immovable property about the gift. I am talking about whether where a person is giving something in consideration, like some spiritual message, some spiritual incitement, some spirituality, whether such spirituality is a consideration or not. If a gift has been made in the consideration of the spiritual messages or the thing, whether such gift is valid or not under section 122 of the Transfer of Property Act. No, sir. Valid है भाई. It is valid. What he is saying, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे. अपनी अम्मा को आपने जो है गिफ्ट दिया, उसके बाद अम्मा कह रही है, कहने लगे ऊपर वाला बेटा तुझे जो है स्वर्ग में लेके जाए, तुझे स्वर्ग मिले मरने के बाद. It is not a gift. Sir, it's a valid gift as a blessing. बस ये ब्लेसिंग्स है, ये कंसीडरेशन नहीं है. डू नॉट बी कंफ्यूज. ये प्रॉब्लम आ चुकी है, समझे आप हर्ष? Yes, sir. कंफ्यूज ना हुई, कोई फायदा ही नहीं है. हम तो इसीलिए तो आपको सब इलिस्ट्रेशन दे रहे हैं यहीं पे. जरा आगे पढ़िए भाई. हाउ एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय द डनी. कैन आई हैव आर स्पीकर? वेर इज शी? Vaibhavi, next to you. Over to you. Section 122. Acceptance when to be made. Yes. Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving. If the donee dies before acceptance, the gift is void. The acceptance must be made during the lifetime of the donor. Acceptance must be made during the lifetime of the donor. If some gift, some property, whether याद रखिएगा अंडर सेक्शन 122 और इस चैप्टर सेक्शन 7 में जो गिफ्ट की बात हो रही है वो दोनों तरीके के गिफ्ट है, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Such acceptance may be made during the lifetime of the donor. Where क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा. A has gift a piece of land to be upon a written agreement, and the gift has been written or made upon a contract to be without any consideration, and B has accepted the gift.
prior to the registration of the gift, the donor A has died. Whether gift can be effectively made. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, याद रखिएगा. Yes, sir. हो सकता Yes, है. sir. Gift has not been registered. It has been executed by the two witnesses. अगर Sir, जरूरत है तो, मुझे नहीं acceptance, पता गिफ्ट acceptance must be, na, गिफ्ट sir. में जरूरत हो, गिफ्ट में जरूरी है कि नहीं है. Sir, it registered documents signed by on behalf of donor and attested by at least 2 witnesses. नहीं तो मुझे जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए पहले. Yes, sir. हो सकता है, enforceable हो सकता है. अक्षा, सब लोग. यस सर. सर हो जाएगा. वैभवी, are you getting the point which I am asking to all? Yes, sir, I got the question. You got the question and what is the answer? Sir, हो जाएगा. I'm not sure. सर हो पता नहीं जाएगा. सर, गिफ्ट तो देखिए, हर्ष की जो रीजनिंग है, अच्छी रीजनिंग उन्होंने दी कि सर द गिफ्ट इज मेड इन प्रेजेंट एंड द गिफ्ट हैज बीन, तजीन ने कहा सर गिफ्ट हैज बीन एक्सेप्टेड and the condition is the gift has to be accepted in the lifetime of the donor. It may be registered later on a later situation. It may be registered. What is the essentiality of the, what is the essence of the gift? Essence क्या है? It must be accepted by the donee during the lifetime of the donor. आगे कह रहा है and while he is still capable of giving it. अच्छा, ए ने बी को गिफ्ट किया, यही इसी एग्जांपल में. he become insane. Section 84 of the Indian Penal Code. Insane delusion. Insane हो गया. Whether gift can be made effectively? Yes, sir. हैं? ये तो सर कह अगर रहा है while he एक्सेप्ट is कर still लिया capable of फिर giving. हुआ तब तो हो जाएगा. नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी. एक्सेप्ट नहीं हुआ. फिर नहीं होगा सर. नहीं, सर तब नहीं तब नहीं होगा. होगा. सर तब नहीं होगा. एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नहीं होगा. सर अगर एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसकी मेंटल कंडीशन सही है तब हो जाएगा. सर आपने कहा था कि वही क्वेश्चन के आगे का है. अच्छा, वही. तो मैं गलत हूँ, तुम सही हो. हैं? नहीं नहीं सर, आप सही हैं. नहीं नहीं बेटा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया. मतलब कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग द पॉइंट, द वे in which you have to defend your question and answer. चलिए अब एसेंशियल एलिमेंट लिखे, वैसे सब पढ़ा दिया हमने. तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन द गिफ्ट. It does not merely make a gift for a certain period of time. It cannot be made out. No life interest can be given in the gift. It must have given the absolute transfer to the transferee or the donee. Yes, no. Next. Second essential element, property must be in the existence. Property must be in the existence. Existence में होनी चाहिए. At the time of making a gift, the property must be in the existence. It may be made as per the provision of section 5. It may be made either in the present or in future. But the property must be in the existence when the donor is making a gift. Is it clear to you?
whether actionable claim can be gifted? Yes. लिख Yes, sir. लीजिए, an actionable claim of the existing property can be gifted under section 122. Next, third essential element is transfer must be without consideration. Without consideration. The third essential element of the gift is the gift must be made without any monetary consideration, because under section 2D of the Indian Contract Act, it requires a monetary consideration. If a person is giving something as blessings, as spiritual insights, it is not a consideration. A valid gift can be made. क्लियर है? कैसे लिखिए? सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट. सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट. No gift in monetary condition. No gift in monetary condition. And fourth one is, it must be made voluntarily. Voluntarily. It means when at the time of the making of the gift by the donor must have made a gift out of his free will. A consent of the donor must not have been obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, etc. If the consent of the donor has been obtained under section 15 to 18 of the Indian Contract Act, such consent shall not be deemed to be a free consent, and such gift shall be voidable at the option of the what? donor. So the person Donor. whose consent was to obtain or donor. Yes, donor. ठीक है? क्लियर है बात? नेक्स्ट, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ट्रांसफरी. Gift must be accepted by transferee. A gift must be accepted by the transferee or the donee prior to any of the effect in which the rights of the donor or any of the condition which donor does not fulfill. For example, if donor dies prior to the making of acceptance, such gift shall be void. क्या होगा? void हो जाएगा. देखिए आगे ये लिखा है ना, if donor dies before the acceptance, gift become void. अच्छा, गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया एट अ टाइम अ गिफ्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द डोनी डाइज आफ्टर द एक्सेप्टेंस, कहाँ जाएगा गिफ्ट? डोनर को चला जाएगा? कहाँ जाएगा? सर लीगल, अरे एलआरस को चला जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को. ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? चलिए सेक्शन 123 पढ़िए. Section 123, transfer how effected. For the purpose of making a gift of immovable property, the transfer must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least 2 witnesses.
For ये the बात purpose of पता, making a ये रुक जाइए, ये बात पता थी आपको, बताया था शुरू में ही। किस किस तरीके के ट्रांसफर में जो है इट मस्ट बी attested at least by the two witnesses? mortgage and gift. मेरे नेटवर्क खराब है कि आप लोगों के खराब है? The सर mortgage मॉर्गेज और गिफ्ट में and gift. मॉर्गेज और गिफ्ट में अटेस्टेशन होता क्या है? किस चीज को अटेस्ट करते हैं विटनेसेस? ये कि कंटेंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में कंटेंट है उसको, फिर नहीं, बस डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट को कि सिग्नेचर को, सर एस्क्यूटेंट के अपने सिग्नेचर को? सर अपने सिग्नेचर करते हैं कि वो अपने एक्सेप्टेंस लेते हैं कि हाँ हमारे सामने ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एज एन सिग्नेचर करते हैं, उसको विटनेस फॉर्म में कहा जाता है। उनके सिग्नेचर होते हैं लास्ट में डॉक्यूमेंट पे, जिसमें ये माना जाता है कि हमारे सामने ये जो डॉक्यूमेंट है वो फुली रजिस्टर करते हैं कि हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराया गया है। रजिस्टर्ड कराया गया है? रजिस्ट्रेशन नहीं का सिग्नेचर नहीं सर, मैडम रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट कराया गया है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट किया गया, सॉरी सर, हाँ एग्जीक्यूट किया गया। फुलनेस ऑफ एग्जीक्यूशन को बताते हैं सर। सर टू अटेस्ट द एग्जीक्यूशन। डॉक्यूमेंट इज टू बियर अ विटनेस टू अ फैक्ट। फैक्ट के नहीं होते ये, उसके अंदर क्या है, उसके विटनेस नहीं है वो, याद रखिएगा। what are inside the what are inside the document, they are not the witnesses of the content, they are witnesses that the executant has signed in front of them, they are the attestant of this thing. Are you getting the point? फैक्ट से क्या मतलब उन्हें? एक रुपए की प्रॉपर्टी, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, किसकी क्या है, वॉट एवर। अब आ जाइए, अच्छा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, टू विटनेसेस। सेल में क्या होता है? सेल में बताइए जल्दी से, हाउ सेल इफेक्टेड? सेल कैसे इफेक्ट होती है भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की? सर सच में शायद बोलिए। सर अगर राइटिंग राइटिंग होती है एक्सचेंज की तरह। 100 रुपीज से आप एक आदमी जब बोलते हो तो सारे बंदरों की तरह बोलोगे, जब बोलोगे नहीं तो एक नहीं बोलेगा। बोलिए। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 एंड अपवर्ड तो उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ऑफ द वैल्यू 100 और लेस देन तो वो इधर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकती है या फिर डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी से भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा मॉर्गेज का बताना वैभवी, मॉर्गेज का क्या मामला है? मॉर्गेज क्या होगा बताओ? तजीन? so मैंने जी सर सिंपल मॉर्गेज में ये होता था कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका पहले बताओ सेक्शन 59 में क्या लिखा हुआ है? बताइए, कोई भी बताइए। मोर देन सर 100 अगर रुपीज प्रिंसिपल मनी जो है वो 100 रुपए या उससे ज्यादा की होती है तो फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन होता है। अच्छा सभी तरीके के मॉर्गेज में? नहीं नहीं सर, वो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को छोड़ टाइटल के। डीड में जिसमें वो अरे सही से बोल लिया करो एक ही बार में, वरना यू आर लाइबल टू बी हेल्ड बाय थप्पड़। रहनुमा, अगर इतना करेक्ट ना किया जाए आप लोगों को समझ नहीं आती क्या बात?
वैभवी जी सर। क्या बात है, ये आराम से मत बोला करो जी सर, मैं कौन करो, जी समझ में नहीं आती एक बार की बात तुम्हें? मतलब कि हद है, आ कोई भी गई क्वेश्चन समझ। तुमसे पूछो तुम्हें जो है पता ही नहीं है अब। हर्ष, व्हाट अबाउट योर परफॉर्मेंस? सॉरी सॉरी सर। अबे सब इतने अच्छे, माइंड लगाया करो एकदम। हाँ 59 में थी, ऐसी बात थी। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को छोड़ के कोई भी मॉर्गेज होगा कितने रुपीज का होगा? 100 या 100 से ज्यादा 100 या 100 से 100 ज्यादा। or above only. कैसे होगा? बाय राइटिंग, राइटिंग है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है? सर रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट है Registered. सर, mortgages Registered के साइन instrument. एंड 2 witnesses attest। और अगर बाद में क्या लिखा हुआ है? सर अगर 100 रुपीज से कम है तो हाँ, इधर बाय सर रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट साइन, एक और वो और जो कुछ है उसमें एक्सेप्शन? सर सिंपल mortgage, सिंपल एक्सेप्ट मॉडरेट। एक्सेप्ट इन एक्सेप्ट। सिंपल। चलिए अब आ जाइए जल्दी से बैक टू द वेदास। 124 पढ़ो, 124। Section Section 1. 124. पढ़ो। द की नोट स्पीकर। Section 124. Gift of existing and future property. A जी, gift comprising both existing and future property is void as to the latter. मतलब ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के मामले में गिफ्ट वॉइड हो जाएगा और फ्यूचर प्रॉपर्टी के में वैलिड होगा, है ना? No, sir. नहीं, और लेटर वाला void होगा, Vice future versa. property वाला। तो फ्यूचर वाला void होगा और existing वाला valid होगा. मतलब लेटर पे लिख के देंगे तो वॉइड होगा। एल ए बाद डबल में टी ई आर वाला ये वो लेटर। वाला लेटर बाद letter वाला नहीं सर। है. लेटर से L बाद A का double वाला। T E R है letter. मतलब पढ़ूं? जिस दान में हो गया? वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों बाद वाला। समाविष्ट हों, वह भावी चलिए संपत्ति के चलिए, विषय में शून्य है। बहुत बढ़िया, चलिए। ठीक है ना? गिफ्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, और जहां एक गिफ्ट में दो चीजें इन्वॉल्व हैं एज टू द एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होगा और फ्यूचर के लिए वॉइड होगा। अब आ जाइए 125। Section 125. Gift to several of whom one does not accept. A gift of a thing सेवरल to सेवरल पर्सन को गिफ्ट किया गया है, ए बी सी को। एक एक्सेप्ट करता है और नहीं करते, किसके रिलेटिंग वैलिड होगा, किसके रिलेटिंग वॉइड होगा, बताइए? a gift of a thing to two or more donors of whom one does not accept it is void as to the interest which he would have taken had he accepted. ठीक है, वॉइड हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड हमारा जो पहला क्वेश्चन था, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट कैसे इफेक्ट में आता है। तीसरा जो इसका पार्ट है, हाउ द गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, वेदर अ गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डोनर और डोनी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, वेदर अ गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड at the sweet or mere will of the donor, or whether where a contract is liable to be resigned, whether a gift liable to be revoked or suspended। तो ये तीन चीजें वी विल डिस्कस। तो पहला जो कंडीशन है रिवोकेशन की, वो कंडीशन है अ गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड by making an agreement between the donor और donee, where donor और donee expressly impliedly नहीं, expressly make an agreement, it may be revoked
by fulfilling the condition of the agreement. ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि क्या खाली मेयर द स्वीट विल और स्वीट कंसेंट ऑफ द डोनर कैन अ गिफ्ट बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड का? नहीं, खाली डोनर की कंसेंट से गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता। और जहां कॉन्ट्रैक्ट लायबल टू बी रिसाइंड है, जहां वॉइडेबल है, अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां भी सस्पेंड किया जा सकता है गिफ्ट। पढ़िए जरा। Section 126. When gift may be suspended or revoked. The donor and donee may agree that on the happening of any specified event which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked. समझ But आया? a gift बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। अ गिफ्ट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द डोनर एंड द डोनी। यहाँ भी ये लिख रहा है, डोनर एंड डोनी में एग्रीड एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड अपॉन terms and conditions on the happening of the specified event. If the specified event happened, the gift shall be revoked or suspended, which does not depend on the mere will of the donor. आगे पढ़िए जरा। But a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor, is void wholly or in part as the case may be. खाली डोनर की मेयर कंसेंट से गिफ्ट सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इलिस्ट्रेशन ए बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मरतबा आया होगा। Illustration A. A gives a field to B, preserving to himself, with B's assent, the right to take back the field in case B and his descendants die before A. B dies without descendants in A's lifetime. A may take back the field. ए जो है बी को अपना घर, एक फील्ड देता है, एक खेत देता है और कहता है कि कहने लगे अगर इस कंसेंट के साथ बी को देता है, कहने लगे अगर तुम मेरे से पहले मर गए या तुम्हारे डिसेंडेंट मेरे से पहले मर गए तो मेरे पास आ जाएगा तुम्हारा खेत। डिसेंडेंट भी नहीं, याद रखिएगा, अगर यहाँ डिसेंडेंट होता और ऐसी कंडीशन हो जाती तो फिर क्या होता? अच्छा, तो नहीं आते। कहाँ कौन सा सेक्शन इफेक्ट में आता? बताइए, अंडर व्हाट सेक्शन दिस प्रोविजन लाइज? तजीन, बताइए। अ गिफ्ट वेयर a transfer has been made to a transferee and the condition has been imposed that it has to be enjoyed as per the direction of the transferor, or any of the condition has been made restraining a person from transferring. कौन से सेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं? ये सेक्शन 10 10 और 11 में फॉल हो जाएगा ना। सब्सिक्वेंट कंडीशन लगा रहे हैं। यह कह रहा है कि देखिए, डिसेंडेंट भी अगर आपका नहीं, डिसेंडेंट कहते हैं लीगल हेयर, आपके अगर डिसेंडेंट भी नहीं है जो आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, इफ दे आर नॉट, देन द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द डोनर, तब वैलिड है। अगर ये होते तो पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं अपना आप ही बोल रहा हूँ। हाँ सर, आ गया। इलिस्ट्रेशन बी। Illustration B. A gives a lakh of rupees to B, reserving to himself, with B's assent, the right to take back at pleasure rupees 10,000.
out of the lakh. The gift holds good as to rupees 90,000 but is void as to rupees 10,000 which continue to belong to A. ए जो है बी को 1 लाख रुपए गिफ्ट देता है और कहता है, कहने लगे जो है दोनों एग्रीमेंट करता है, कहने लगे मैं कभी भी तुमसे 10,000 वापस ले लूंगा जब मेरी मर्जी होगी। तो कहा क्या नहीं, 90,000 के लिए गिफ्ट वैलिड है और 10,000 के लिए ऐसा गिफ्ट वॉइड होगा, VOID वॉइड। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, गिफ्ट कब सस्पेंड और रिवोक किया जा सकता है? बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द डोनर एंड डोनी। नेक्स्ट सेकंड लिखो, रिवोकेशन बाय रिसेशन, रिवोकेशन बाय रिसेशन as in case of contracts, as in case of contracts। पढ़िए जरा सेकंड पैरा। A gift may also be revoked in any of the cases, save want or failure of consideration, in which, if it were a contract, it might be rescinded. अच्छा देखिए, वो कह रहा है कि if a gift may also be revoked in any of the case, save want of the failure of consideration, in which, if it were contract, it might be rescinded, where the consent of a person or the donor has been taken out of the coercion or undue influence or fraud or by misrepresentation. Such contract is voidable at the option of the donor, and the donor shall have a right to rescind such contract. Rescind करा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे टीपीए में। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा पढ़ो ना, या फिर नेक्स्ट सेक्शन पढ़ दूं? नेक्स्ट पैरा, Save as aforesaid, a gift cannot be revoked. गिफ्ट नहीं रिवोक किया जा सकता ऊपर के दिए गए, जो कह दिया बस उन्हीं पे रिवोक होगा, अदरवाइज रिवोक नहीं होगा। ऑल दीज आर द कंडीशन, देयर आर 2 कंडीशंस इन विच द गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड। इनके अलावा नहीं होगा। तो किन में नहीं होगा वो बता दीजिए। Nothing contained in this section shall be deemed to affect the rights of transferees for consideration without notice. ओहो, कौन सी किसकी बात कर रहे हैं ये? कहना क्या चाहते हैं ये यहाँ? हाँ हाँ, बोनाफाइड परचेजर की बात कर रहे हैं। बोनाफाइड परचेजर। A has made a gift to B on a certain condition to enjoy a property. Suppose ऊपर वाली कंडीशन थी कि अगर तेरे डिसेंडेंट मेरे से पहले मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन बी ने उससे पहले ही जो है सी को बेच दी विद कंसिडरेशन, वेदर द राइट ऑफ द सी विल बी सबसिस्ट और नॉट। बताइए, समझे इलिस्ट्रेशन क्या है? सर सबसिस्ट करेगा। इलिस्ट्रेशन समझ गए? जी। ए ने बी को ट्रांसफर किया और कहा कि अगर तुम जो है मेरी लाइफ टाइम में मर गए और तुम्हारे डिसेंडेंट भी, तो ट्रांसफर वर्ड होगा नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी वापिस। अब जो है बी जो है ऐसे ट्रांसफर कर देता है पहले ही विद कंसिडरेशन सी को। सी को इस बात का नहीं पता था कि ये एक वाली कंडीशन लगाई गई है, जो ये प्रॉपर्टी इनको मिली है वो पैसा दे के प्रॉपर्टी ले लेता है। अब जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट, what will be the effect of the transfer made by the B? Whether transfer is valid or void? वैलिड सर वैल्यू वैलिड होगा सर।
मैं वर्ड कह रहा वैलिड हूँ, होगा। कौन कौन मेरे साथ है? इज एनीबडी विद मी? बताइए भाई। चलो फिर वैलिड है, मान लेते हैं, मैं वैलिड है भाई, मान लो मान लो, ठीक है, वैलिड मान लो। हाँ अब भाई तुम लोगों का साथ भी चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। यही है नया नारा। जय किसने दिया है? जय अनुसंधान। वैभवी, जैसे जिस एसेंट में बोल रहे हो उन्हीं से पूछ लीजिए। जय नारा किसने दिया है? अरे नहीं है क्या यहाँ कोई इसे सेंट वाला? चलिए अब आ जाइए ऑनरस गिफ्ट 127। ऑनरस गिफ्ट, ऑनरस गिफ्ट इज a gift in which only not a gift is transferred but some liability is also transferred. दुर्लभ दान, दुख देने वाला गिफ्ट। Wherein a transaction of a property has been transferred by way of the gift to the donee. The donee shall not only get the benefits out of the transaction, but but the liability of the donor shall also be attached with the gift. He shall be liable to pay the liability. इसी को कहते हैं दुर्लभ दान। वेदर दुर्लभ दान दुर्भर कैन बी दान मेड, सर, दुर्लभ अरे नहीं, जो भी दुर्भर दान। दुर्भर, अरे दुर्भर सर दुर्लभ दुर्लभ यार अलग चीज तुम होती लोग। है सर, दुर्लभ इज सर वेरी दुर्भर, दुर्लभ। तो वेदर दुर्भर दान कैन बी मेड इन फेवर ऑफ द माइनर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। माइनर के फेवर में किया जा सकता है कि नहीं, नो बताइए। सर। नहीं नहीं किया हो जा सकता। सकता, लिख लीजिएगा, पढ़िए जरा जल्दी से। Section 127, onerous gift, हम्म, where a gift is in the form of a single transfer to the same person of several things, of which one is and the others are not burdened by an obligation. The donee can take nothing by the gift unless he accepts it fully. यस याद रखिएगा, उसमें कुछ बेनिफिट्स है, कुछ जो है बर्डन है। जब तक के पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट आइए। लेकिन अगर कहीं पर टू सेपरेट है, एक एक ट्रांजेक्शन में बर्डन दे रहा है, एक ट्रांजेक्शन में जो है बेनिफिट्स दे रहा है, अगर वो बेनिफिट्स एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, हो सकता है। सेपरेट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट पैरे में सेपरेट है। Where ऑनर्स a गिफ्ट gift टू is द, in the form, बस जो बताया वही लिखा है। कैसे भाई? ऑनर्स गिफ्ट टू द डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड मीन्स where a person who is not unsound mind or a competent to minor, contract. not competent to contract, क्या इनके फेवर में बनाया जा सकता है ऑनरस गिफ्ट? नहीं। 128। Universal donee. हम्म, what who is Subject universal to the donee? जिसको गिफ्ट दिया गया है, he also liable to some, he also liable to a liability of the donor to the extent of the property which has been transferred to the donee. अंडरलाइन करिएगा, एंड में लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड। जितनी दी है उससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसी बात हमने पढ़ी थी सीपीसी में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्शन 50 डिसीज्ड। सेक्शन 50 52 में क्या है फिर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है 50 में, और इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये है 52 में।
और टू द एक्सटेंट भी 50 में है कि किस एक्सटेंट तक, जितनी उसको मिली है। यहाँ भी यही बात कह रहा है कि जितनी मिली है उस तक। हमने एक इलस्ट्रेशन दिया था कि जहाँ ए बी को जो है 70,000 के रुपए गिफ्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की है, तो कितने तक के लिए लाइबल होगा बी? 1 लाख की 70,000? 70,000। नेक्स्ट 129। Section 129. Saving of donations, mortis causa and Mohammedan law. मर्जुल मौत। ठीक है, मर्जुल मौत पर अप्लाई नहीं होता। द गिफ्ट अंडर सेक्शन 120 under this chapter of the gift relating to the Muslims not been applicable by this chapter, or not been governed, the Muslim are not governed by this chapter but by the Shariat Act of 1937 by making a hiba। ठीक है, हिबा होता है वहां। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 8, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? देखिए, अंडरलाइन करिएगा, एक्शनेबल क्लेम हम पढ़ा चुके, कैसे इफेक्ट होगा पढ़िए, हाउ इट विल बी इफेक्टेड। Section 130. Transfer of actionable claim. Clause 1. The transfer of an actionable claim, whether with or without consideration, shall be effected only by the execution of an instrument in writing, signed by the transferor or his duly authorized agent, shall be complete and effectual upon the execution of such instrument, and thereupon all the rights and remedies of the transferor, whether by way of damages or otherwise, shall vest in the transferee, whether such notice of the transfer as hereinafter provided be given or not. अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्शनेबल क्लेम कैसे ट्रांसफर किए गए। इट शैल बी इफेक्टेड ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अंडरलाइन करिएगा, साइंड बाय द ट्रांसफरर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, whether a registration of actionable claim is necessary or not। No बताइए, registration is required. रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा देखिए, आप समझिएगा, सेल में भी है रजिस्ट्रेशन, है कि नहीं है? यस सर। मॉर्गेज में, यस सर। लीज में, गिफ्ट में, यस सर। क्या एक्शनेबल क्लेम में है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है 131। Section 131. Notice to be in writing, signed. नोटिस राइटिंग में होने चाहिए, साइंड होने चाहिए। जो इस सेक्शन के अंडर नोटिस दिया जा रहा है एक्शनेबल क्लेम से रिलेटिंग, किसे कैसा होगा वो? राइटिंग में होगा, साइंड बाय द ट्रांसफरर होगा और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। नेक्स्ट आ जाइए, जरा इसका मुझे मतलब बताइए 132 का पढ़ के, बताया हुआ है Section CPC में। 132. Liability of transferee of actionable claim. जी, The transferee of an actionable claim shall take it subject to all the liabilities and equities to which the transferor was subject to in respect thereto at the date of transfer. मतलब तजी, मतलब ट्रांसफर ही सुना था वर्ड? सर हाँ हाँ, इसमें असाइनमेंट हो रहा है एक्शनेबल क्लेम, मतलब राइट CPC वाला में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 132?
सेक्शन 132 सिंपली कह रहा है कि वेयर द एक्शनेबल क्लेम, हमने शुरू में जब एक्शनेबल क्लेम पढ़ाया था हमने पूछा था वेदर एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन, तो आपने कहा यस इट कैन बी ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन, where it is transferred to the third person, that such person is known as transferee, and he shall be entitled to hold all the equities, all the rights of the transferer. जो भी जिसने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया है, जिसका एक्शनेबल क्लेम था, वो सब राइट उसके होंगे, एंड इंक्लूडिंग ऑल द लाइबिलिटीज विच आर अटैच्ड टू, ही शैल बी लाइबल टू ऑल दीज लाइबिलिटी। क्लियर है बात? 134 Section 134, mortgage debt. मॉर्गेज डेट। कोई मॉर्गेज डेट है जब मॉर्गेज मनी से कोई जो मॉर्गेज डेट था नहीं पे किया गया मॉर्गेजर के द्वारा, उसको ऑक्शन सेल में बेची गई प्रॉपर्टी को, तो पहले क्या लिया जाएगा, उसके बाद क्या, और बच गया तो क्या? बहुत सीक्वेंस में दिया है, बताइए। Where a debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt. The debt so transferred, if received by the transferor or recovered by the transferee, is applicable first in payment of the costs of such recovery. Secondly, कॉस्ट, उसको रिकवर करने में कितनी कॉस्ट लगी वो रिकवर की जाएगी। दूसरा, secondly, in or toward satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer, and the residue, if any, रुकिए, belong अब जितने भी डेट था, जितना भी डेट था जो सिक्योर किया गया था वो ले लो, उसमें से जो बचा है वो ट्रांसफर को भेज दो। पढ़िए। and the residue, if any, belongs to the transferor or other person entitled to receive the same. क्लियर है? अब आ जाइए 137। Section 137, saving जी, of negotiable instruments, etc. this chapter will not be applicable relating to the negotiable instrument, stock, shares, Stocks, debenture, shares, and debentures. डिवेंचर एसेट्रा। ठीक है, टीपीए डज नॉट अप्लाई, बहुत बार पूछा गया ये सेक्शन, सीधा सीधा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी एंडिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फ्रॉम माय साइड, एंड इट इज द बिगिनिंग फ्रॉम योर साइड नाउ। इफ you have any question you may ask. And next subject will be क्या शुरू होगा अब नेक्स्ट? SRA स्टार्ट होगा आपका मंडे से। सारे तो डिमांड में होगा। पार्टनरशिप पढ़ा दे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लीजिए सर। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, SRA क्यों नहीं? पढ़ा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अभी वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, हम मिलते हैं एक पोल डाल दीजिए मंडे। उस पे, ग्रुप पे, जो हाँ हाँ, ज्यादा वो डाल सब्जेक्ट लोग वो देंगे। करें तो फिर वही पढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या होगा, और मंडे में मिलेंगे अब विद द न्यू सब्जेक्ट। सर थैंक कल यू क्लास सो नहीं मच। होगी? नहीं नहीं, कल मेरी क्लास नहीं है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, टीपीए में पहली बार पढ़ रहा हूँ तो इसको इफेक्टिवली कैसे बार बार रिवाइज करें?
मतलब इफेक्टिवली कैसे इसको याद रखें? यार ये आपको एक बात बता दे, यहाँ महेश सर हमारे साथ हैं, he can also guide you on this point and I would suggest the thing, जितना हम रिवाइज करेंगे उतना हमको याद करने में, मेमोराइज करने में फायदा होगा, क्योंकि सर टीपीए आपका नाम तो नहीं पता, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और जी जहाँ सर। तक ये रिवीजन की बात बोली है, तो रिवीजन का जी तो कोई दूसरा कोई नियम ही नहीं है, बस सीधी सी रिपीटिशन ही बात। revision। जी बिना रिपीटिशन के कोई दुनिया में कोई तरीका बना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जितनी बार आप उसकी रिपीटिशन करेंगे उतना ही याद होने के चांस है। देखिए हमको आज जो सेक्शन याद है, जो चीजें पता है, तो दिस इज नॉट बाय द बर्थ। मैं सर आई एम द पर्सन हु हैज gone for buying the jurisprudence direct. I went to the market to ask for the jurisprudence और इंटरनेशनल लॉ बेर एक्ट। मेरे सर ने मुझे कहा बेटा कल जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगे, बेर एक्ट लेके आना। ठीक है। हम जाके लड़ रहे थे दुकान वाले से, मेरे सर ने कहा वो गलत हो ही नहीं सकते, बेर एक्ट दे दो। रिपीटेशन जो सर ने कहा है, मेरे सर ने शायद दे रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कहते थे जब वो पढ़ाते थे, कहने लगे बेटा अ पेन इज बेटर देन 1,000 ऑफ द माइंड्स। whatever you are hearing, whatever you are listening, write it down. मैंने भी एक लाइन सीखी सर, सुनी, जिसको मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि हमारे यहाँ दो मेमोरी है हमारे माइंड में जी। एक टेम्परेरी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। जी। टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो हम कोई भी आज आपने मेरे से बात सुनी या मैंने आपकी बात सुनी, तो मैं विद इन 24 आवर्स में उसका 80% भूल जाऊँ। सिंपल। उसमें आगे कोई जो भी चीज आएगी वो बढ़ती चली जाएगी और पुरानी निकलती चली जाएगी। जी। और जितना हम उसको रिपीट करेंगे वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। बिल्कुल सीधा सा नियम है। सामान्य तौर पे मैं समझाने के लिए बोलता हूँ सर बच्चों को, जी मोटिवेट करने के लिए जी कि जी। मतलब जितना मेरी एज और एक्सपीरियंस है, हमने मोटा मोटा जो ये एक्ट है ना, बेर एक्ट, जी जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और लोकल लॉ है या मेन सेंट्रल लॉ बता दें, सेंट्रल लॉ की बात करें तो बता बच्चों को कि ये सारे मेरे, ये मान के चलो कम से कम है ना, कम से कम बोल रहा हूँ 500-700 बार पढ़े उड़े। बिल्कुल सही बात है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मोटिवेट करने के जी लिए। पढ़े भी है, जी मैं ये जी। नहीं, पढ़े भी होंगे 200 बार, 300 बार, 400 बार, मे बी क्वाइट पॉसिबल। तो अरे सर हम तो ये कहते हैं कि हमने इतनी मर्तबा पढ़े हैं, ऊपर वाला करे ये एक बार पढ़े हुए चीज बन जाए। नहीं, पर मैं वही समझाता हूँ सर, फिर अगर इनको बताने के लिए कि भाई हमने तो इतने इसलिए पढ़ने पड़े क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिली। जी। हमने तो क्या है को एकलव्य की तरह जो है निशाना बनाकर बिना राइम एंड रीजन के, बिना सिस्टमेटिक तरीके से, और वो उसको पढ़ते चले गए जितना उसको सही बात। पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मार्गदर्शन के हिसाब से सही तरीके से उसको पढ़ें तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसको बार बार पढ़ते रहिए जो पढ़ने, जो हम बताते, मतलब जो भी कोई आपका मेंटर बताता है, तो फिर आपको बिल्कुल। नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बीच में 1-2 बार बच्चों को टोका कि, और मैं भी अभी भी ये बातें कर रहा था कि सर आप जो है अपना जब भी पढ़े तो उसको जब भी सुने, आपका जो भी टीचर है, जो भी मेंटर है, उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको, तो आपको उसको उसकी हर बात को डेफिनेटली जो है केयरफुली तरीके से पढ़ना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए, जो कि हम कम करते हैं।
हमें जो भी आपका मेंटर है वो पढ़ा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके हर वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए, रिपीटिशन करना चाहिए। सहायक जी, रिपीटिशन ही जो है एक इसका तरीका है और उसके अलावा दुनिया में कोई तरीका बना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए और सर। यही तरीका है, देखिए सर ने भी आपको कहा और हमने भी, एंड आई एम एश्योरिंग यू द थिंग्स कि हम लोग जितना आपको बता देंगे, जाइए आप अच्छे पैसे खर्च करिए तो वो आपको उतने बारीकी से नहीं बताएगा जितने हम बता रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हो। और सर ये बात ऊपर वाले का करम है, हमारे जितने स्टूडेंट है दे आर स्टिक विद अस, और पढ़ने के बाद दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हम वी आर नॉट टेकिंग द ह्यूज मनी, सो वी आर मेकिंग देम फुल। उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि इनको फुल बना सके, तो हम वी आर जस्ट डिलीवरिंग समथिंग that our nation will progress. When they will progress, they will become some, they will be at a some position, they will thankful to the God डेफिनेटली कि ऊपर वाले हमने ऐसे तो कम से कम मेंटर मिले कि हम बहुत जल्दी अपने रास्ते तक पहुंचाए। तो सर एंड थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ठीक है। ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और महेश सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप कनेक्टेड रहिए काशिफ सर से। चलिए, थैंक चलिए यू सर। सो मच। हाँ, और ये मैं एक लास्ट लाइन और बोल दूं कि सहायक जी, अभी आप ये सोच रहे हो जैसे कि सर जी जैसे बात कर रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, तो कई बार ये मान लो मेरे से भी आपने 1-2 क्लास ली है, लिमिटेशन लॉ हमने पढ़ा है, तो सर ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज आप कर सकते हो। जी जी, पर इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और लगातार डेली पढ़ने की हैबिट डालिए। बस तो बस। आपको ये आपके भी टिप्स पे हो जाएगी। पर रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप सोचो एक दिन में हो जाएगा, वो नहीं होगा। हाँ, पर होएगा ज़रूर। ये होता आप है सर, बिलीव कर। होता है। मैं मेरी लाइफ में मुझसे कमजोर स्टूडेंट कोई नहीं रहा, जब हमें याद हो गया तो सबको हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा। हाँ, बोलिए सहायक जी। ये सर क्लासेस के बाद बहुत हेल्प होता है चीजों को समझने में। सर अभी एक मेडिकल कंडीशन हो गया मेरा, तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ता हूँ, तो वहाँ मैं जा नहीं पाया, तो एक सेमेस्टर ड्रॉप हो गया मेरा। तो अभी मैं घर पे रिकवर हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए मोटिवेशन लो हो गया था। चलो देखो वो मोटिवेशन तो तो कभी भी लो नहीं होगा। हाँ, हाँ। बाकी मैं तो सर आज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, पर मैंने अभी जैसे लिंक देखा हर जी का, तो मैं कहा चलो मैं सुनता जी हूँ जी अब। जी, तो थैंक यू सो मच सर, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हाँ, 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 हाँ। चलो, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। गुड नाइट, शब बखैर। वेलकम वेलकम।